میں جاننا چاہتا ہوں کہ عقیدے کی بنیاد حقیقت پر ہو، یا یہ کہ یہ کہیں افسان بھی تو نہیں ہے، یا یہ کہیں ایسے دعووں پر مبنی تو نہیں ہے جنہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ محض اس لیے کیونکہ کسی نے کہا کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ میرے خیال میں لوگ قیامت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور نئے عہد نامے کی زبان میں خاص کر قیامت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ایسی دنیا سے واقف نہیں ہوتے۔ جناب مسیح نے قیامت کے بارے میں کیا کہا اور اس پر کیوں شک یا یقین کیا جائے؟ دریافت کے اس دن قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے گا تو بھی زندہ رہے گا۔ یہ بیتنیہ کا عرب گاؤں ہے۔ بیتنیہ یروشلم سے صرف 2 میل مشرق میں ایک فلسطینی برادری ہے۔ نئے عہد نامے کے مطابق جناب مسیح کو آخری بار یہاں پر ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 40 دن بعد دیکھا گیا۔ مصنف لوکا کی انجیل کے مطابق یہ زیتون کے پہاڑ کی مشرقی ڈھلوان پر تھا کہ جہاں جناب مسیح کے شاگردوں نے اپنے استاد کو دیکھا کہ وہ ان کے سامنے بادلوں پر چلا گیا۔ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے اس کی نظروں سے چھپا لیا۔ لوکا کی انجیل۔ تو ہم کیوں یقین کریں کہ مردوں میں سے زندہ ہونے والے جناب مسیح بیتنیہ کے گاؤں سے بادل میں اٹھائے گئے تھے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں جناب مسیح سے جڑی ہوئی ایک اور قیامت کو اسی برادری میں بیان کیا گیا ہے۔ اس قصبے کا عربی نام العزاریہ ہے۔ العزاریہ کا نام لازرس نامی شخص کے نام پر ہے۔ یہاں قدیم العزاریہ میں اناجیل میں کہا گیا ہے کہ جناب مسیح کی صلیبی موت سے پہلے انہوں نے اپنے دوست لازرس کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور پھر یہ مقام اپنے اصلی نام بیتنیہ کی بجائے العزاریہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ ایک دیرینہ روایت یہ بھی ہے کہ لازرس کا اصل مقبرہ یہی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس مقبرے کے راستے میں جناب مسیح نے لازرس کی بہن مارتھا سے کہا، میں ہی قیامت اور زندگی ہوں۔ کلام مقدس کے مطابق بہرحال یہ لازرس کی پرورش ہی تھی جس نے یروشلم میں مذہبی رہنماؤں کو جناب مسیح کی موت کی منصوبہ بندی کرنے پر مجبور کیا۔ ان رہنماؤں کو رومی قبضے کے تحت اپنا اقتدار اور مقام کھونے کا اندیشہ تھا۔ اگر لوگوں نے جناب مسیح کو بطور منتظر مسیحا اور بادشاہ قبول کیا ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 11۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آج بیتنیہ کی زیارت کو آئے تو اس کے دل میں 2 طرح کے جذبات ہوں گے۔ ایک طرف آپ اس مقبرے پر جا رہے ہیں جو کہ معجزے کی علامت ہے۔ جب آپ شہر میں چلتے ہیں اور ہر چیز بہت نارمل ہے، جیسے آپ کے علاقے میں ہوگی یا میرے علاقے میں ہوگی، ہم مردوں کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں یہاں۔ جب جناب مسیح کے جی اٹھنے کی خبر پھیلی تو میرا مطلب ہے ان کے اپنے شاگردوں میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے تھے، اور وہ سب غیر یقینی کا شکار ہو چکے تھے، اور شک کرنے کی وجہ بھی صحیح تھی کیونکہ یہ ناقابل یقین تھا۔ انہیں یہ بہت اچھا لگا، وہ اس کا ثبوت چاہتے تھے۔ کلام مقدس کے مطابق متعدد عورتیں تدفین کے مصالحے سے لے کر جناب مسیح کی قبر پر گئی تھیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور قبر خالی تھی۔ جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں وہ مریم مگدلینی اور یونا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 24۔ جناب مسیح کی قیامت پر یقین رکھنے والے پہلے لوگ بہت شکی تھے۔ جناب مسیح کی قیامت پر یقین رکھنے والے پہلے لوگ آج ہی کی طرح کے لوگ تھے۔
ان کے اپنے کچھ سوالات تھے اور انہیں یقین نہیں تھا کہ انہیں کیا ماننا چاہیے جب تک کہ وہ ثبوت کو نہ دیکھ لیں۔ اب مسیحی ہونے کے ناطے ہم اتوار کے روز ہونے والی دو اہم چیزوں کو مانتے ہیں۔ ایک قیامت، ہم مانتے ہیں کہ جناب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، لیکن دوسری بات جو مسیحی مانتے ہیں اور نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے ان کی خالی قبر۔ یقیناً ہم نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ بڑی کہانی جناب مسیح کا جی اٹھنا ہے، اور خالی قبر بس خط کے بغیر ایک کھلا لفافہ ہے۔ حالانکہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے وہ جی اٹھے جو خالی تھی، لیکن اس میں ہمیں دلچسپی نہیں۔ خبر یہ ہے کہ خداوند جی اٹھا ہے، لیکن کسی کو شاید خالی قبر میں دلچسپی نہیں۔ چنانچہ کچھ قدیم تاریخ دان ہیں جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، جن میں میں بھی ہوں۔ میں نے خالی قبر کا دورہ کیا ہے اور یہ پایا میرے پاس دو بڑے دلائل ہیں۔ میں جی اٹھنے کے سوال پر غیر معمولی سوچتا ہوں۔ مختصراً خالی قبر کے بارے میں دو بڑے نظریات تک پہنچ پایا ہوں، اور پہلا استعمال ہوا صدیوں تک مسیحی چرچ کی طرف سے۔ یہ کبھی مسترد نہیں ہوا، اس میں ایک طاقتور دلیل ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی جواب ہے، اور وہ دلیل ہے یہ سوال کہ اصل میں مسیحیت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اور ظاہری طور پر اس کا جواب ہے ایک شہر ہے، یروشلم۔ لہذا شاید ہی کبھی بھی مسیحیت کا آغاز ہو پاتا اگر جناب مسیح ناصری کا ختم ہوتا ہوا جسم کسی بھی اور مقبرے میں مل جاتا، یا پھر کسی دوسری قبر میں یا کسی اور جگہ پر اگر ہمیں جناب مسیح کی لاش مل جاتی جو کہ اس مقبرے میں نہیں تھی، تو یہ مسیحیت ایک دھوکے کے طور پر آغاز میں ہی ختم ہو جاتی۔ یہ مسیحیت کے دل میں ایک چاقو پیوست کرنے جیسا ہوتا۔ ہم آج مسیحیت پر ہنس رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے کہ کیا تم جانتے ہو کہ پہلی صدی میں ایک یہودی فرقہ تھا جو یہ ایمان رکھتے کہ ایک صلیب شدہ مجرم خدا کا بیٹا ہے، اور ہم اس پر ہنس رہے ہوتے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اس لاش کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ ڈاکٹر مائر نے بھی اس ستم ظریفی سے استدلال کیا کہ قدیم یہودی ذرائع حقیقت میں خالی مقبرے کے خیال کی تائید کرتے ہیں۔ اس معاملے میں یہاں تک کہ یہودی ربانی روایات بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جناب مسیح کا مقبرہ خالی تھا۔ اب وہ کبھی نہیں کہتے کہ قبر خالی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ان کا جسد خاکی چوری ہوا تھا۔ یہ ایک ہی بات ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور یہ صرف حضرت متی کی بات نہیں، یاد رکھیں کہ حضرت متی نے ہمیں کیا بتایا۔ یہ خالی قبر کے بارے میں قدرتی وضاحت کا ابتدائی حصہ تھا کہ جسد خاکی چوری ہو گیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ متی کی انجیل باب 28۔ جہاں تک جسم کے چوری کرنے کے نظریے کا سوال ہے، سب سے پہلے آپ یہ بات کیسے ثابت کریں گے جبکہ قبر پر محافظ تھے؟ اور اگر کوئی بھی کسی بھی طریقے سے یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو کسی کو ایسا کرنے کا کیا انعام ملنا تھا؟ وہ کیوں ایسا کرتا؟ شاگردوں نے ایسا کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ تو بہت غمزدہ تھے، انہوں نے اپنے آقا کو مرتے ہوئے دیکھا، اور ان کے لیے بھی ان کے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ تو ایسا کرنے میں کسی کا کیا فائدہ؟ اور اگر انہیں انعام بھی ملتا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لہٰذا جسد خاکی چرائی جانے والی بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ خیال کہ جناب مسیح قبر میں صرف بے ہوش تھے اور قبر کی ٹھنڈک سے دوبارہ زندہ ہو گئے، اس کا جواب ان لوگوں میں سے ایک نے دیا تھا جو خود جناب مسیح کے جی اٹھنے پر اعتراض کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایک ایسا کمزور شخص جو موت کے دہانے پر ہو اور قبر سے لنگڑاتا ہوا باہر آ جائے، یہ قیامت کے عقیدے پر کسی کو بھی متاثر کرنے کے قابل نہیں۔ میں آپ کو رومیو کے سلیب دینے کی اوسط بتاتا چلوں جنہیں انہوں نے سلیب کے ذریعے مارا، یہ تقریباً 1000 تھے، یعنی اس سے پہلے انہوں نے کسی کو بھی مرنے کا ناٹک نہیں کرنے دیا تھا۔
यही वजह है कि मौत के रुझान को जांचने के लिए उनके पास हमेशा एक जल्लाद मौके पर मौजूद होता था। यहाँ तक कि इंसानों की खूनखार लड़ाइयों के दौरान भी, जिन्हें ग्लैडिएटर्स की लड़ाई कहते हैं, हर लड़ाई से पहले जमीन पर बहुत से लोग गिरे पड़े होते थे। एक अफलातून जैसे कपड़ों में मलबूस आदमी उनके पास आता था और लाशों के बीच रक्स करता और हर एक को छूता। अगर कोई हरकत करता तो वो चाकू दिल में उतार देता। पाक जुमे के दिन ऐसा हुआ था। ये एक खेल नहीं, लेकिन एक चाकू है जो जनाबे मसीह के दिल से गुजरता है। लेकिन जब उन्होंने यसू के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 19। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उससे फिर लेने का भी इख्तियार है। अनाजील के मुताबिक आखिरी बार जब मुर्दों में से जिंदा होने वाले जनाबे मसीह को देखा गया था तो वो यही बैतनिया का गांव था। कलाम मुक़द्दस कहती है कि यहाँ से ही इस बरादरी में जनाबे मसीह के पैरोकार के देखते ही देखते वो बादलों में गायब हो गए। दिलचस्प बात यह है कि जनाबे मसीह के जी उठने के लिए सबसे मजबूत दलील खाली कब्र से नहीं बल्कि जनाबे मसीह के पैरोकारों से आएगी। नए अहदनामे के मुताबिक जनाबे मसीह के 40 दिन के अरसे में बहुत से ज़हूर ने उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराने की हिदायत की कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। तारीखी हकायक का एक नमूना जो मेरे जहन में मौजूद है वो ये है, जिससे कम से कम शवाहिद या हकायक कहता हूँ, क़यामत तक ये सबसे कम अमूमी नुक्ता नजर है, जो कुछ इस तरह से है। मारूफ स्कॉलर्स चाहे कितने ही शुबहात रखते हों, वहां जाकर अमूमन कुछ इस तरह कहते होंगे, जनाबे मसीह की मौत मसलूबियत की सख्ती की वजह से वो दफनाए गए। उनके शागिर्द ये नफ्सियाती तौर पर बयान करना बड़ा मुश्किल है कि उनके दोस्त को, उनके निजात दहिंदे को उनसे छीन कर दूर किया गया और वो इस बात पर खुश हो रहे होंगे। नहीं, वो बहुत ही दुखी होंगे, गमज़दा होंगे, सोचते होंगे कि उनका सब कुछ छिन गया। आप जानते हैं कि उनके पास नफ्सियाती अलामात मौजूद हैं जो सलाहकार के पास ले जाएंगी। लेकिन ज्यादातर उलमा कराम ने इतराफ किया है, ज्यादातर उलमा बाकियों की तरह मुतफिक्का नहीं, कि उन्हें एक खाली मकबरा मिल गया। यानी कुछ दिन बाद की बात कर रहा हूँ। अब इसमें एक अहम नुक्ता है। अमली तौर पर हर तनकीदी आलम जो ये लिखता है और सोचता है कि इब्तदाई शागिर्दों के हकीकी तजुर्बात थे, उन्होंने ज़ाहरी तौर पर देखा कि वो वाकई जी उठे हैं। मेरे ख्याल में क़यामत के वाक़यात बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, महज इसलिए क्योंकि अगर उनके पास सिर्फ एक खाली मकबरा होता ईद फसा की इतवार की सुबह, तो मेरे ख्याल में क़यामत की तबलीग करना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा, ओके लाश कहाँ पर है? वो लाश कौन ले गया है? आओ उसे लेकर आओ, सबूत लेकर आओ। या बसूरत दिगर ये कहते कि जसद खाकी चोरी हो गया और कहानी खत्म हो जाती। मुझे नहीं लगता कि मसीही चर्च कभी भी आगे बढ़ पाता एक महदूद से यहूदी फिरके के तारुफ से, जो शायद सन 100 ईस्वी को भी ना देखता, अगर खाली कब्र वाला वाकया ना होता तो। सन 56 बाद अज़ मसीह में कुरंथस और यूनान के लोगों को लिखे गए खतूत हजरत पौलुस की यकीन दहानी को जाहिर करते हैं कि जनाबे मसीह के ज़हूर उनके जी उठने का सबूत है। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, दिखाई दिया, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। पहला कुरंथियों बाब 15। हमारे सामने रसूलों की शख्सियात में बेशुमार तब्दीलियां आईं, जो कि वाकई बहुत हैरान कुन तब्दीलियां थीं। अब ये बात बहुत अहम क्यों है?
जब उन्होंने ये तजुर्बात किए तो उनकी जिंदगियां बदल गईं। अब गैर मसीही इस नतीजे पर आते हैं और ये कहते हैं कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां सबकी जिंदगियां तब्दील होती हैं। हर किस्म के मज़ाहिब और सियासी नजरियात, एक मुल्हद को इश्तराकी बुनियाद पर तब्दील किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये सच है। लेकिन जिंदगी बदलने का मतलब उन असूलों पर यकीन रखना है जिन पर उनकी जिंदगी कायम है। कलीदी बात यह है कि सिर्फ वही शागिर्द थे जो जानने की पोजीशन में थे कि क्या उन्होंने अपनी जिंदगी को जिस पर मबनी किया है वो वाकई सच है या गलत। वो जानने की पोजीशन में थे कि जनाबे मसीह जी उठे या नहीं। चुनाचे उनकी जिंदगियां बदली जिन्हें सब लोगों ने देखा, जो बहुत शक्की थे, जिनमें एक जालिम पालूस था, फिर एक शक्की और यकीन ना रखने वाला शख्स याकूब था जो कि जनाबे मसीह का भाई था। वो दोनों ईमान ले आते जब उनको यकीन हुआ कि ऐसे तजुर्बात हुए जो जी उठे जनाबे मसीह की ज़ाहिरी शक्ल थे। अनाजील के बयानात के मुताबिक हजरत पतरस क़यामत के रोज से ड्रामाई तौर पर तब्दील हो गए थे। इससे पहले जनाब मसीह की गिरफ्तारी की रात हजरत पतरस ने खौफ से यह भी इनकार कर दिया था कि वो गलील के उस्ताद को जानता भी है। जुमेरात की रात गिरफ्तारी के वक्त भी वो इतनी हिम्मत नहीं कर सका। अब ये वही शख्स है जिसके फौरन बाद पेंतीकुस्त के इतवार को, यानी कुछ देर बाद, यानी जनाबे मसीह की क़यामत के सिर्फ 50 दिन बाद ही हम देखते हैं कि वो खुलेआम इंजील की मुनादी कर रहा है, और वो भी उन लोगों के दरमियान जिन्होंने जनाबे मसीह को मसलूब किया, जो पहले डरे हुए थे, ऊपर के कमरे में छुपे हुए थे लोगों के खौफ की वजह से। लेकिन अब नहीं। रसूलों को किस चीज ने मुतासिर किया कि वो पूरी दुनिया में गए और जनाबे मसीह के पैगाम को फैलाया। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की गवाहियां हैं, वो भी जो मसीह पर ईमान रखते थे, मगर वो लोग भी किसी हद तक शकी थे इस बात को लेकर के उन्होंने उनकी मौत की खबर सुनी और उनके दावों को भी कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। वो बेयकीन थे और घबराए हुए भी। हमारे पास कुछ और लोग भी हैं जो कि बज़ाहिर मसीह के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो उनके साथ भी नहीं थे। कुछ तो वो उनके अपने भाई थे, यानी अपने खानदान के लोग भी इसी गिरोह में थे। और फिर यकीनन हमारे पास वो लोग थे जो जनाबे मसीह पर यकीन नहीं रखते थे, और सबसे ज्यादा मारूफ तारसिस का साउल था, जो कि फिर बाद में मशहूर जमाना पौलुस रसूल बना। तो हमारे पास जनाबे मसीह की क़यामत के गवाहों की 3 तरह की अक़साम हैं। इन सब लोगों ने, उन लोगों ने भी जो उन पर ईमान रखते थे और उनके साथ थे, और वो जो उनके साथ नहीं थे या फिर दरमियान में थे। लेकिन फिर भी इन तमाम लोगों का कहना था कि उन्होंने मुर्दों में से जी उठे जनाबे मसीह को देखा और कायल हो गए कि ना सिर्फ उनको खुदा ने यहाँ भेजा, बल्कि उन्हें इंसानियत के लिए निजात दहिंदा बनाया। जनाबे मसीह ने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थीं जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। लूका की इंजील बाब नंबर 24। आज बहुत से लोग हैरान हैं कि आया जनाबे मसीह के पैरोकारों ने उनके जी उठने की कहानी को खुद से तो नहीं घड़ा। जो इस पर शक करते हैं कहेंगे कि गालिबन ऐसा हुआ होगा। जनाबे मसीह जुमे के दिन फौत हुए, वो मुमकिना तौर पर इतवार को मुर्दों में से जिंदा नहीं हो सकते थे। तो कुछ हफ्ते के बाद ही हजरत पतरस शागिर्दों को इकट्ठा करते हुए गलील के समंदर के किनारे गए और उन्होंने कहा, साथियों, हमने जिंदगी के 3.5 साल जाया किए, अब हमें क्या करना है? माहीगिरी करें? हाँ, ये भी एक अच्छा आइडिया था। फिर पतरस ने अचानक कहा, 1 मिनट, एक प्लान है, एक कहानी है मेरे पास। तुम इसको फॉलो करो और एक दिन वो तुम्हारे नाम गिरजा घर कर देंगे। उन्होंने ये सोचा होगा, पर किसी भी सूरत वही है जिसने जनाबे मसीह के जी उठने की कयास आराई की थी, फर्जी तौर पर। लिहाजा अगर ऐसा भी था कि पतरस ने इंजील तहरीर की थी, तो हम जानते हैं ये कितनी मुख्तलिफ होती। हफ्ते के पहले दिन को हजरत पतरस, हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना रसूलों की इंतजामी कमेटी खुदावन की पेशन गोई पर तवक्कल करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। सुबह सवेरे कब्र पर पहुंचते हैं, और जब उनके ईमान को जी उठे मसीह ने नवाजा, जिसने कहा, मुबारक हो तुम पतरस, याकूब, यूहन्ना, हमने फिर बाकी रसूलों को बताया, मगर उन्हें यकीन करने में मुश्किल हुई क्योंकि वो वैसे भी दूसरे दर्जे के रसूल हैं, और औरतों को ये अफसानवी कहानियों की तरह लगा। और यहाँ आप जी उठने की कहानी के बिल्कुल बरक्स बातें सुनते हैं।
जहां शागिर्द ही शकूक व शुबहात का शिकार थे, जहां खवातीन ही जनाब मसीह के जी उठने की इब्तदाई शाहिदीन थी। बस कीजिए, अगर आप इस तरह की कोई कहानी घड़ना चाह रहे हैं, आपके पास इब्तदाई गवाहों के तौर पर खवातीन नहीं होंगी। अगर आज हम ये कहें तो ये बहुत जिनसी बयान होगा, पर हम 2000 साल पहले के मुआशरे की बात कर रहे हैं, जब गैरतमंद खवातीन को भी हक नहीं होता था कि वो अदालत में पेश हो, यहाँ तक कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो। तो अगर आप यहाँ ये दावा करते हैं कि जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो खवातीन गवाह क्यों? तो कहानी को घड़ा नहीं जा सकता था, और अगर घड़ी भी जाती तो पतरस का मंसूबा नाकाम होता, और जब उसे रोमी मैदान में सलीब पर लटकाया गया तो मेरे ख्याल में उसने तेजी से सीटी बजाई होगी और कहा होगा कि वक्त खत्म हो गया, अब बस कीजिए। इस मजाक में किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है। हुक्काम बाला को बुलाओ, मैं बताता हूँ कि हमने ये किस तरह किया और रियासत का सबूत बन जाता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी जान बख्शोगे तो। जबकि लाखों मजहबी अकायद की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, लोग कभी किसी झूठ के लिए नहीं मरते। रिवायत के मुताबिक जनाब मसीह के शागिर्दों में से एक के सिवा बाकी तमाम अफराद बतौर गवाह उनके जी उठने के गवाहों के तौर पर शहीद हुए। मैं कहूंगा कि आप क़यामत के दिन पर क्या कहेंगे? ये शायद वाहिद अहम सवाल है जो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसी कायनात है जहां खुदा ने बेटे को मुर्दों से जिंदा किया, तो ये वाकईतन एक ऐसी कायनात होगी जहां कुछ चीजें पैरवी करती हैं, कुछ नहीं। ये कायनात है जहां एक खुदा है जिस कायनात का कोई मानी है। ऐसी कायनात जहां हम लोगों के साथ खास तरीके से बर्ताव करते हैं और ऐसा लगता है जैसे खुदा करता है और उन्हें ऐसे पैदा किया गया। ऐसा लगेगा कि ये वो कायनात है जहां मुझे बहुत मोहतात रहना होगा कि मैं अपनी बाकी जिंदगी क्या करूं, तालीम क्या हासिल करूं, या अपने अगले हफ्ते या फारिग वक्त में क्या करना चाहता हूं मैं। मेरे जाती तजस्सुस ने मुझे सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर किया, तो मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया जिसको लिखा था पेशावर साइंसदानों और फलसफियों ने, जो कि चंद मसीही थे और चंद नहीं भी थे। हत्ता कि मुसलमान लिखारियों की भी ये देखने के लिए कि हमें ये सबूत आखिर कहाँ को ले जाता है, और मुझे जहाँ भी सबूत मिलता मैं उस तरफ जाने के लिए तैयार था, क्योंकि ये अब्दियत का सवाल वाकई बहुत बड़ा और अहम है, हमारी जाती पसंद और नापसंद से। जब मैं बात करता हूँ किसी ऐसे आदमी से जो मसीही ना हो और जो ये सोचता हो कि ये जनाब मसीह वही हैं जिनके बारे में मैंने मुख्तलिफ ज़राए से सुना, वो सोचते हैं और दिलचस्पी लेते हैं कि आखिरकार ये शख्स कौन है। मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि वे जाकर अनाजील को पढ़ें, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, और उन्हें कलाम मुक़द्दस के तौर पर ना पढ़ें, और हत्ता कि जब वो उन्हें पढ़ें तो एक हतमी नतीजे के तौर पर भी ना देखें उनको, वो इसे भी तारीख के किसी एक किताब के तौर पर पढ़ लें। खादमीन जैसे उन्हें कहा जाता है, जिन लोगों ने ये अनाजील लिखी थी, उस चीज़ को महफूज करना चाहते थे जो उन्होंने तारीख में होते हुए देखा था। वो क्या था जिसका उन्होंने दावा किया था, वो करते क्या थे, और ये इतना ज़रूरी क्यों हमारे लिए। ये उन्हें बसीरत देगा कि जनाब मसीह ने क्या कहा, कि वो क्या थे, वो क्या बन गए थे। और इसके बाद मैं कुछ मज़ीद गहराई में देखता हूँ। मैं देखूंगा जनाब मसीह की क़यामत की तारीख़ी दास्तानों को, क्योंकि उनकी इस क़यामत में एक ज़ाती मुज़ाहिरा है कि वो तारीख़ की किसी भी मजहबी शख्सियत से कुछ ज़रा मुख्तलिफ हैं। ये इस बात का अलामिया है कि वही खुदा का अज़ली महबूब है। मैं वाकई समझता हूँ कि जनाब मसीह का जी उठना कहानी के एक सफ़े को दूसरी कहानी के सफ़ों तक बदलता रहता है। ये जिस तरह से C.S. लुइस ने खुदा के बारे में, उसकी जगह और वक्त के बारे में जो हैरत अंगेज कहानियां बताई, वो सच थी। एक और सोच भी है यहाँ। अगर आप यहाँ आए और यहाँ खड़े हो जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो हमें एहसास होता है कि हम जैतून के पहाड़ की मशरकी ढलवान पर हैं, यरूशलेम की बिल्कुल दूसरी तरफ। तो आपको ये भी एहसास होता है कि लूका के मुताबिक ये आखिरी जगह थी जहाँ जनाब मसीह को देखा गया था। वो अपने शागिर्दों के साथ आए और सबने देखा कि वो यूं ही बादलों पर उठा लिए गए, और उन्होंने एक गिरोह के तौर पर अपनी आंखों से देखा ये। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यसू जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा
जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमाल की किताब बाब नंबर 1। और यहाँ एक और ख्याल भी है, जब हम पुराने अहदनामे की तरफ लौटते हैं, जब आप यहाँ खड़े हैं और आपको एहसास होता है कि कदीम नबी ज़करिया आखिरी दिनों में एक वक्त देखता है जब मसीहा जैतून के पहाड़ पर आएगा। ये वही जगह है जहाँ जनाब मसीह के शागिर्दों ने उसे वापस जाने के वादे के साथ जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। देख, खुदावंद का दिन आता है और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़े है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।